चलिए भैया, आपका हो गया था टॉपिक कौन सा टॉपिक हो गया था? व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया था क्या? बैलेंस और अनबैलेंस दोनों हो गया था। चलिए, गिव द टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। एप्लीकेशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। एप्लीकेशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एप्लीकेशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, जल्दी बैठ जाइए। एप्लीकेशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। एप्लीकेशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। एप्लीकेशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। लिखा? लिखेगा मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज। METER मीटर ब्रिज। सारे बच्चे टॉपिक डालेंगे मीटर ब्रिज। दिखेगा? 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 दिस इज अ डिवाइस। दिस इज अ डिवाइस। इज अ डिवाइस which is based on. This is a device which is based on. Which is based on principle of. Which is based on principle of. Principle of Wheatstone bridge. Based on principle of, sorry, balanced Wheatstone bridge. Balance लगा दो. Which is based on principle of balanced Wheatstone bridge. Which is based on principle of balanced Wheatstone bridge. Wheatstone bridge used for balanced Wheatstone bridge used for used for used for determining used for determining used for determining value of value of value of resistance of value of resistance of unknown resistor. Value of resistance of unknown resistor. Value of resistance of unknown resistor. ठीक है? नेक्स्ट लिखिएगा, इसमें पॉइंट लिखना, पॉइंट नंबर 1 तो डेफिनेशन हुआ। पॉइंट नंबर 1, in meter bridge in meter bridge in meter bridge meter bridge 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 1 meter 1 meter 1 meter wire is used in meter bridge. 1 meter wire is used made up of made up of made up of constantan and magnene. Made up of constantan, here is the spelling, and magnene. Constantan and magnene लिखिएगा कॉमा डाल के, an alloy which is independent to which is independent to which is independent to 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 variation in temperature, which is independent to variation in temperature, which is independent to variation in temperature.
which is independent to variation in temperature. ठीक है, वेरिएशन इन टेम्परेचर, फुल स्टॉप डाल दीजिए। सेकेंड लिखिए, द बोर्ड ऑफ मीटर ब्रिज इज फिक्स्ड विथ द बोर्ड ऑफ मीटर ब्रिज इज फिक्स्ड विथ बोर्ड, BOARD बोर्ड, द बोर्ड ऑफ मीटर ब्रिज इज फिक्स्ड विथ फिक्स्ड विथ फिक्स्ड विथ the board of meter bridge is fixed, FIXED, with fixed with thick copper strips, thick, THICK, thick copper strips, thick copper strips, strips, in order to avoid, in order to avoid, in order to avoid extra resistance in the circuit, in order to avoid extra resistance in the circuit, extra resistance in the circuit, in order to avoid extra resistance in the circuit, which is used to, which is used to, which is used to measure, which is used to measure, which is used to measure correct value of unknown resistance, which is used to measure correct value of unknown resistance, which is used to measure correct value of unknown resistance, which is used to measure correct value of unknown resistance, which is used to measure correct value of unknown resistance, unknown resistance। कहानी सुनिए, अब इधर सारे बच्चे देखेंगे, डायग्राम्स आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, डायग्राम्स के साथ सवाल भी आता है, तो हम डायग्राम के साथ सवाल भी समझेंगे, बट ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे से समझा जाए तो बहुत आसान भी होगा। चलो देखो यहाँ से, एक बोर्ड रहता है इस तरीके से, लुक हियर, क्या रहता है बोर्ड। अभी हम लोगों ने व्हीट स्टोन पढ़ लिया, तो व्हीट स्टोन का एक एप्लीकेशन दी और उसमें इस तरीके से सारे बच्चे ध्यान देंगे, जो जो बातें लिखा है उसको ड्रॉ भी करेंगे। उसमें ऐसे करके कॉपर स्ट्रिप्स लगे होते, जिन्हें कॉपर स्ट्रिप समझ में आ रहा है, वेल एंड गुड। स्ट्रिप्स का मतलब होता है एक तरह का पट्टी, पट्टी, कॉपर की पट्टियां होती हैं, ठीक है, द मेटालिक स्ट्रिप। और यहाँ पे भी एक स्ट्रिप को लगा दिया इस तरीके से, दीज आर द कॉपर स्ट्रिप्स। ओके, अब उसके बाद क्या होता है कि बाएं वाले सेक्शन के अंदर देखोगे यहाँ पे दो नट्स लगे होते हैं, ठीक है, उन नट्स पे ऐसे आके एक रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट कर दिया जाता है, इसे कहते हैं आरबी। अब भैया हमें क्या पता आरबी क्या होता है? आरबी स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस बॉक्स। जल्दी बताइए, रेजिस्टेंस लग गया। और यहाँ पे एक रजिस्टर लगता है, इसका वैल्यू हमको पता करने रहता है, इसको मान लेते हैं हम लोग एस। क्या मान लेते हैं इसको? एस। और इसको मान लेते हैं हम लोग आर। एस स्टैंड्स फॉर अननोन रजिस्टर। क्या बताइए यहाँ से? अननोन रजिस्टर, अननोन रजिस्टर है ये, okay? ये अननोन रजिस्टर है जिसे हमें पता करना है, और याद रखना ये राइट वाले कॉलम में रहेगा। यहाँ भी दो नट्स रहते हैं, उस पर कस दिया जाता है, ठीक है। तो एक प्लाई का बोर्ड रहता है, बोर्ड के ऊपर कॉपर स्ट्रिप्स रहते हैं, कॉपर स्ट्रिप्स में नट्स लगे हुए हैं, उनके बीच में हम रजिस्टर को कसे जा रहे हैं। ये आरबी क्या है? रेजिस्टेंस बॉक्स थोड़ा बता दीजिए भैया। रेजिस्टेंस बॉक्स थोड़ा देखो ऐसा होता है कुछ, एक आरबी रेजिस्टेंस बॉक्स बनाया और इसके ऊपर बहुत सारे कीज होते हैं ऐसे ऐसे लगे हुए, ठीक है। और हर की के ऊपर कुछ अपना अपना वैल्यू रेजिस्टेंस का मेंशन होता है। मान लो ऐसा कुछ मेंशन, यहाँ पे 2 हो, यहाँ 4 हो, यहाँ 6 हो, यहाँ 8 हो, ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस बॉक्स को जैसे मैंने यहाँ पे लगाया, तो होगा क्या, यहाँ पे जो भी की को हम आप ओपन कर दोगे, वही रेजिस्टेंस यहाँ लग जाएगा खुद वक्त। जैसे मान के चलो मुझे 8 ओम लगाना है,
8 ओम के की को मुझे ओपन करना पड़ेगा, तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स के ऊपर 8 ओम वाला रेजिस्टर जैसे आप ओपन करेंगे तो ये वर्क करना चालू कर देंगे। मुझे 6 ओम और करना है तो 6 ओम भी खोल दिए, तो 8 और 6 कितने हो गए? 14 ओम वर्क में आ जाएंगे। आया समझ में? रेजिस्टेंस बॉक्स का काम है कि जितना रेजिस्टेंस आपको लगाना है वो आप इस पे लगा सकते हो। एस कौन सा रजिस्टर है? अननोन रजिस्टर है। इसका वैल्यू आपको पता करना रहता है बाय जो भी प्रोसेस व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से। हम लोग कैसे करेंगे अभी देखेंगे सभी को। उसके बाद नीचे एक वायर लगा होता है और ये वायर 1 मीटर का होता है। कितने मीटर का होता है बताओ? 1 मीटर का। दिस वायर इज मेड अप ऑफ 1 मीटर वायर। 1 मीटर का ये वायर होता है। अब 1 मीटर का वायर होता है, इस कारण से टर्म आ गया मीटर। क्या आ गया बोलो यहाँ से? मीटर। और उसका नाम पड़ गया मीटर ब्रिज, इसलिए क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज का ब्रिज है। है समझ में? कितने मीटर का वायर होगा? 1 मीटर का, लिखा हुआ है आपके डेफिनेशन के अंदर। तो 1 मीटर स्टैंड्स फॉर बाय द कन्वर्जन यूनिट, ये 100 सेंटीमीटर्स का भी हो सकता है। अग्री कर रहे हो क्या? 1 मीटर या फिर कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या होता है, और इसी वायर के बारे में लिखाया था मैंने। ये 1 मीटर वायर जो है ये बना होता है कॉन्स्टेंटन। मैंने इसके बारे में चर्चा किया था जब ग्राफ में पढ़ा रहा था। रेजिस्टेंस के ग्राफ में देखिएगा, इसका चर्चा ग्राफ भी ड्रॉ करवाया। एंड मैग्नीन, मैंने बोला था कि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, तो टेम्परेचर से लेना देना नहीं है। बोला था आगे एक डिवाइस में इस्तेमाल होगा और वो डिवाइस ये है। ठीक है। अब उसके बाद बीच में एक लगा होता है बच्चे और एक नट। ठीक है। इस नट से एक वायर कनेक्टेड होता है और उस वायर से हम कनेक्ट करते हैं एक्स्ट्रा वायर। मैंने नट पे लगाया, वायर को फंसाया, नट कस दिया। ठीक है। अब यहाँ पे लगा दिया एक डिवाइस होता है, इसको कहते हैं गैल्वेनोमीटर। क्या कहते हैं इसको? गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर से फिर फर्दर ऐसे एक्सटेंड करते हुए एक ब्लंटेड, ब्लंट का मतलब होता है आगे से जो पूरा शार्प ना हो, ठीक ना, ऐसे करके शेप का एक गोली के शेप का यहाँ पे एक पॉइंटर रहता है जिसको मूव कराना रहता है इधर से इधर वायर के ऊपर। ठीक ना, आप कहीं फ्रीली मूव करा सकते, बट जेंटल मूवमेंट, और इसका नाम होता है मूवमेंट वाले का जॉकी। क्या नाम होता है ये? ठीक ना। और ये चीज क्या है जल्दी बताओ यहाँ से? दैट इज द गैल्वेनोमीटर। ये क्या है बोलो? गैल्वेनोमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति किसी को? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? अब इसकी मूवमेंट आप कहीं भी करा सकते हो। ये कैसा रहता है बता देते हैं। ब्लंटेड, आपने बुलेट्स देखे तो राइफल्स में फिल करते हैं या मोजर्स में, ये जो ब्लंटेड एंड होते हैं, ज्यादातर बुलेट्स होता है शार्प नहीं रहता, स्नाइपर्स का शार्प होता है, छिला हुआ होता है। नॉर्मली अगर आप लेंगे तो उसका ब्लंटेड एंड रहता है, राइफल्स का ब्लंटेड एंड रहता है। वैसे बुलेट्स का देख लो, बुलेट्स की तरह रहता है, इसको मूव कराना रहता है। अब चलिए इसके बारे में बात करें। यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो दिस द रेजिस्टेंस बॉक्स जिसका रेजिस्टेंस आर है। दिस द अननोन रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस एस है, हमको पता करना है। गैल्वेनोमीटर आपने लगा दिया, और साथ ही साथ यहाँ पे एक आपको बाहर से यहाँ पे लगाना पड़ेगा एक स्विच और एक सेल के साथ, और लगा दिया, और इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। इसके प्रोटेक्शन के लिए आपको एक अननोन रेजिस्टर भी लगाना था, बट इट्स ओके, आप इसको ऐसे लगा दो। ठीक ना। और जो एक्सटर्नल सर्किट होती है, इसको हम लोग एक्सटर्नल सर्किट कहते हैं। कौन सर्किट कहते हैं इसको? एक्सटर्नल सर्किट। ओके, कौन सा एक्सटर्नल सर्किट? ये बाहर से आप कनेक्ट कर, ये प्लस है, ये माइनस है। अब ध्यान देना, यहाँ का एंड को मैं माना ए और इस एंड को माना बी। कनेक्शंस पे ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। ए पे आपने कौन सा कनेक्शन लगा रखा है? प्लस या माइनस? प्लस। और बी पे याद रखना ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल देगा और ये वाला निगेटिव टर्मिनल। यहां तक के डिस्कशन में कोई दिक्कत, कोई आपत्ति कंस्ट्रक्शन में? सबको समझ में आया? चलो रिकॉर्ड करता हूँ। टू वाला सेक्शन एक प्लाई बोर्ड है। क्या बताइए? प्लाई बोर्ड है। जैसे आपका बोर्ड दिख रहा है, ये प्लाई का बना होता है। उसके ऊपर 3 कॉपर स्ट्रिप्स ऐसे लगे होते हैं, कॉपर की पट्टियां लगी होती हैं। हर कॉपर के पट्टियों पे यहाँ पे नट्स लगे होते हैं। नट्स के ऊपर आप चीजों को कसते चले जाते हो। मुझे रेजिस्टेंस बॉक्स का दोनों एंड को लाना है, दोनों वायर्स को नट को ओपन करके कस देना है। ये रेजिस्टेंस बॉक्स का जितना रेजिस्टेंस आपको लगाना है, वो रेजिस्टेंस आप यहाँ से आराम से लगा सकते हैं। एस क्या है? एस वो अननोन रेजिस्टर है जिसके बारे में आपको पता करना है, क्योंकि ये डिवाइस अननोन रेजिस्टर के रेजिस्टेंस का डेटा देता है। रजिस्टर डिवाइस को कहते हैं, रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी को कहते हैं। तो मुझे एस का वैल्यू निकालना है। दूसरी बात है, बीच में लगा एक डिवाइस, इसको गैल्वेनोमीटर कहा जाता है। तो फर्दर एक जॉकी से लग के इस वायर पे आप इधर उधर इसको कर सकते हो। ये काम वैसा ही करेगा
जैसा एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कर रहा था, क्योंकि ये बेस ही है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन। इसका काम है एस के वैल्यू को पता करना और बाहर से एक सर्किट को जोड़। चलिए अब थोड़े से इसके वर्किंग पे आ जाते हैं, वर्किंग कैसे करते हैं। चलिए, जैसे इसको टैप ऑन करेंगे आप, तो गैल्वेनोमीटर के अंदर मान के चलो, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के अंदर एक ऐसे करके कांटा है, डिफ्लेक्शन शो करने लगा वो। अब वो डिफ्लेक्शन शो करने लगा, डिफ्लेक्शन शो करने का सीधा मतलब है कि यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है जल्दी बताइए? करंट फ्लो कर रहा है। करंट स्टार्ट्स टू फ्लो। आपने स्विच को ऑन किया, आपने देखा यहाँ डिफ्लेक्शन आना चालू हुआ, मतलब करंट इससे फ्लो कर रहा है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इस जॉकी को ना जेंटली मूवमेंट कराना है। जेंटल मूवमेंट का मतलब समझो, ये वायर है, वायर के ऊपर जॉकी को इस तरीके से रब करना है, धीरे 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 टैप करना है, प्रेस नहीं करना है वायर। रीजन है, वायर को अगर आप प्रेस करेंगे तो उसका एरिया चिपक, मान के चलो वायर है, उसको जोर से दाब दो ऊपर से, तो मेटल हो सकता है थोड़ा अंदर धंस जाए। जहां धंसेगा उसका क्रॉस सेक्शन बदलेगा, क्रॉस सेक्शन बदलेगा तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा। इसलिए इसका जेंटल मूवमेंट कराना, आप इसको प्रेस नहीं कर, तो बहुत धीरे से इसको मूव कराते रहते हैं, ठीक है। करें, किसी ना किसी एक पॉइंट पे, ए से बी के बीच में किसी एक पॉइंट पे ऐसा अनुभव होगा आपको कि यहाँ पे करंट बिल्कुल डिफ्लेक्शन नहीं कर रहा, ना के बराबर डिफ्लेक्शन। मतलब एक पॉइंट आएगा इस पूरे वायर पे जहां पे इसका डिफ्लेक्शन जीरो डिफ्लेक्शन में बदल जाएगा। कौन से डिफ्लेक्शन में बोलो? जीरो डिफ्लेक्शन। अब ये डिफ्लेक्शन शो ही नहीं कर रहा। अगर डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा, मतलब क्लियर इंडिकेशन है कि अब यहां से जा रहा करंट का वैल्यू कितना हो चुका है? जीरो। क्योंकि गैल्वेनोमीटर का काम है, वो किसी करंट के प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? करंट के प्रेजेंस को। करंट है या नहीं है, बस इसको बताता है। कितना है नहीं है, वो वोल्ट मीटर और एमीटर का काम है। ये बस ये बताएगा कि करंट किधर फ्लो कर रहा है, और करंट है या नहीं है, बस ये इंडिकेट करके दे। तो जहां पे डिफ्लेक्शन कितना हो जाए, जीरो, तो वहां पे करंट का वैल्यू कितना हो गया है? जीरो। अब याद कीजिए वो दिन मैंने आपको बताया था कि बीच वाले वायर के थ्रू करंट का वैल्यू कितना होना चाहिए? जीरो। और अपने पॉइंट्स में देखिए मैंने लिखाया है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। कौन सा बोलिए यहाँ से? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का तो रूल था कि बीच वाले वायर थ्रू करंट का वैल्यू जीरो, इसीलिए तो उसको खोल के हटा दिए थे। अगर पी बाई क्यू आर बाय एस के बराबर हो जाए तो बीच में करंट फ्लो नहीं करता, तो इसमें करंट फ्लो नहीं करता। तो भैया ये बात तो क्लियर हो गया कि यहाँ करंट फ्लो नहीं कर रहा है। अब वो बात बताइए कि रेजिस्टर्स कहाँ लगे हुए हैं? दो तो दिख रहे हैं, दो कहाँ पर हैं? तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो हम ऐसा कंसीडर करेंगे, जहां जॉकी के पॉइंट को मूव करा जा रहा है उसको कुछ पॉइंट जे मान लो। क्या मान लो? जे। और जिस पॉइंट पे एक ही पॉइंट होगा, पूरे वायर पे एक ही पॉइंट है, और अगर नहीं मिल रहा है तो आपने कुछ गड़बड़ी नीचे किया है, एक्सटर्नल सर्किट ही गलत लगाया होगा, या तो इसको इन्वर्ट कर दिया है, कुछ गड़बड़ी कर, तभी नहीं हो रहा। एक पॉइंट में जीरो होगा, और जहां जीरो हो गया वहां जीरो डिफ्लेक्शन कहलाता है। और दैट पॉइंट वेयर इट इज जीरो, इट इज कॉल्ड एज अ बैलेंस्ड पॉइंट। कौन सा पॉइंट कहलाता है जल्दी बताइए? बैलेंस्ड पॉइंट। ये बैलेंस्ड पॉइंट इज द कंसेप्ट इज क्लियर? क्यों, कोई दिक्कत? तो 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर जल्दी बताइए? 100 सेंटीमीटर। कहीं ना कहीं बैलेंस पॉइंट मिल गया। इसका मान लो यहाँ से यहाँ तक लेंथ एल है, लेंथ कितना है जल्दी बताइए? L। अगर ये लेंथ एल है, पूरा 100 सेंटीमीटर है, तो रिमेनिंग कितना है बोलो? 100 माइनस क्या चीज? एल। ठीक ना? 100 माइनस क्या चीज? एल। तो 100 माइनस एल ये, और ये क्या है जल्दी बताइए? एल। तो ये बताइए यहाँ पे कौन सा पॉइंट मिल गया? बैलेंस पॉइंट। ये एल और ये क्या चीज? 100 माइनस एल। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? और ये कौन सी है बताइए? अननोन रजिस्टर है। और ये रजिस्टर को जो हमको पता है, अब एक बात बताओ, मुझे 6 ओम लगाना, मैंने 6 खोल दिया, तो 6 खोला तो मुझे पता लग गया ना यहाँ 6 ओम है। तो ये नोन है या अननोन है? इट इज नोन। ये नोन है, हमको ये पता है, ये हमारे कंट्रोल में है। बट वो मैंने कुछ भी लगा दिया, मुझे उसका वैल्यू पता करना है। ठीक है, तो अगर ये एल है तो ये क्या चाहिए बताइए? 100 माइनस एल। एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज, कौन सा पॉइंट चलिए बताइए? बैलेंस पॉइंट। अब गौर कीजिए, मैं यहाँ पे एक सेक्शन ले रहा हूँ, एक सेक्शन यहाँ देखिए सभी कोई गौर कीजिएगा, ए है, और यहाँ पे क्या है जल्दी बताइए? जे। इस वाले वायर के सेक्शन का कोई ना कोई तो रेजिस्टेंस होगा, बोलो हाँ या नहीं? क्योंकि इसका लेंथ है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस मैं बोल रहा हूँ आर ए जे। एजे नजर आ रहा है सभी को क्या? एजे नजर आ रहा है सभी को क्या? एजे का मैं वैल्यू लिख रहा हूँ ऐसे करके, रो एल बाई क्या चीज? ए। याद आया फॉर्मूला? रो एल बाई ए। एल इसका लेंथ है, ए इसका क्रॉस सेक्शन होगा,
और रो उसकी क्या है, रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी बताओ, इंटायर द वायर फिक्स ही होगा। रेसिस्टिविटी क्या लेंथ और पे डिपेंड करता है? नहीं, वो सबके लिए सेम हो। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आर जे बी के बारे में। जे बी दिख रहा है सभी को क्या? जे और क्या चीज? बी। इसके लिए क्या लिखेंगे? रो 100 - एल। 100 - क्या चीज? एल। दिस द लेंथ। बोलो हाँ या नहीं? क्रॉस सेक्शन एरिया इसके लिए भी क्या हो जाएगा? ए। अब समझो इस बात को कि जब कभी जॉकी का मूवमेंट हो रहा है, जॉकी को मूव करा रहे हैं, तो मान के चलो ये वायर है और जॉकी का मूवमेंट आप करा रहे हैं, और कराते कराते आपको कहीं भी ये हक नहीं है कि आप इसको कस के प्रेस करके करें, क्योंकि अगर आपने क्रॉस सेक्शन बदल दिया तो फट से रेजिस्टेंस चेंज हो जाए। और माइनर माइनर वैल्यू में रेजिस्टेंस फ्लक्चुएट करता है। क्यों? आपको तो लगा है थोड़ा सा प्रेस ही कर दें तो क्या चल जाएगा? अरे जहां पे आपने प्रेस किया वहां के इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को डिस्टरबेंस स्टेट हुआ, और जहां इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, रेजिस्टेंस बहुत तेजी से भागेगा इधर उधर। इसलिए क्या करना पड़ता है? एक जेंटल प्रेस करके करना। एक पॉइंट पे ही कहीं जीरो होगा। समझ में आ गया? अब बताओ, इधर का रेजिस्टेंस को मैं कुछ आर मान लेता हूं, और इधर का क्या माना है जल्दी बताओ? एस। अब आपको नजर आ रहा है क्या? यहाँ कितने चार रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं? बोलो हाँ या नहीं? चार नजर आ रहे हैं क्या? दो तो क्लियरली हो गया यार, और दो किसके हो गए? वायर्स के। एजे और कौन से? जेबी। और ये गैल्वेनोमीटर एज ए ब्रिज का काम कर रहा है क्या? बताओ ये बैलेंस है या अनबैलेंस है? क्योंकि करंट का वैल्यू जीरो या नॉन जीरो? जीरो। अगर ये बैलेंस है तो क्लियर कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बाएं तरफ के लगे हुए रेजिस्टेंस का रेशियो राइट साइड के रेजिस्टेंस के बराबर होता है। यही ना बोला था, P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। तो P बाई क्यू का काम ये कर रहा है, आर बाई एस का काम ये कर रहा है, हालांकि नाम अलग अलग है, तो कोई टेंशन नहीं है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज किस पे बेस्ड था? याद है आप लोग को? फिगर याद कीजिए। क्या ऐसे कॉपी में बनवाया था आप लोगों से? आया नहीं? मैं एक रफली डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, याद करो। यहाँ था पी, यहाँ क्या था? क्यू, यहाँ जाता आर, और यहाँ पे बस करंट का वैल्यू जब जीरो हो गया तो क्या लिखे थे? पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। तो क्या मैं इस फिगर के अनुसार, क्या ये आर नाम जरूर है, नाम पे मत जाइएगा, बट ये पी का काम कर रहा है क्या? ये किसका काम कर रहा है? क्यू का। वो क्या चीज का? और ये किस चीज का? एस का। समझ में आया? तो क्या मैं लिख सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज? सारे बच्चे क्या लिखेंगे बताइए? बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज क्या हम लिख सकते हैं? आर बाई आर ए जे। आर बाई आर ए जे। बोलो सब कोई क्या लिखेंगे? बोलो आर बाई आर ए जे, रेजिस्टेंस ऑफ ए जे वायर। करिए और नो। और एस बाई क्या लिखेंगे? बोलो आर जे बी। बोलो हाँ या नहीं? आर जे बी लिख सकते हैं क्या? अब आर की जगह आप आर ही लिख दो। आर की जगह क्या लिखो? आर। आर ए जे एक फॉर्मूला निकला है कुछ? क्या क्या वैल्यू निकला है? रो एल बाई ए। बहुत अच्छा, उधर बोलो एस बाई रो 100 - एल बाई ए। कुछ कॉमन चीज नजर आ रहा है क्या? क्या न बताओ यहाँ से? रो भी आ रहा है, रो, और ए भी आ रहा है, और ए आया क्या? तो हमारे पास रेशियो क्या आ गया? बोलो सब कोई आर बाय एल इज इक्वल टू एस बाय 100 - एल। मुझे किसका डेटा निकालना है? एस का या आर का? एस का। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्या? तो एस बराबर क्या आ जाएगा? बोलो सब कोई। बोलो यहाँ 100 - एल बाय एल। कर दिया क्या क्रॉस मल्टीप्लाई? इनटू क्या चीज? आर। ये आपका डेटा निकल गया। दैट इज द अननोन रेसिस्टर। कौन सा रेसिस्टर? अननोन रेसिस्टर। यहां से आपका अननोन रेसिस्टर पता हो जाता है। एंड हियर इज द फॉर्मूला। अब जो बात बोलूंगा गौर करने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक ना? गौर कीजिएगा। ये तो आप समझ गए कैसे निकला। एस इक्वल टू 100 - एल बाय एल इंटू क्या चीज? आर। आर बताओ नोन है या अननोन है? आर 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 नोन है। एस यही तो पता करना है। एल आपका बैलेंस पॉइंट आ ही जाएगा, वो रख दो उठा के आंसर आ जाएगा। अच्छा, आप कनेक्टिविटी देखना। ये वाला किधर लगा हुआ है? बोलो लेफ्ट या राइट? जैसे बोलूंगा उधर लेफ्ट या राइट। तो ये लगा है आपका लेफ्ट साइड पे। किधर लगा है बताओ? लेफ्ट। और ये वाला राइट साइड पे। तो आपको याद ऐसे नहीं रखना, अब जो बोलूंगा वैसे याद रखना है। आपको लगा एस इक्वल टू 100 - एल बाय एल इंटू आर, रट्टा मार लो। नहीं ऐसे नहीं, आपको जो बोलूंगा वो याद रखिएगा। कौन सा लगा है बताओ? राइट या लेफ्ट साइड? राइट। तो आप याद रखोगे कैसे? जो बताऊंगा दोबारा याद रखना। राइट साइड क्या लिखोगे? राइट साइड इज इक्वल टू 100 - एल बाय एल इंटू लेफ्ट साइड। जो बोला एकदम दिमाग में ये बैठा के आप रखो।
आप उसको थोड़ी देर के लिए भूल भी जाओ चलो, बट ये मत भूलो। लॉजिक है। अभी जब इसके और थोड़े से एक्सटेंडेड केस कराऊँगा तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। नहीं तो कुछ बच्चे रट के चले जाते हैं। पहली बात तो उनके दिमाग में ये चलता है आरएस परे थे यहाँ, यहाँ आरएस दिख ही नहीं रहा है, ठीक ना? ऐसे नहीं चलता। आप कैसे याद रखोगे बोलो? राइट साइड इज़ इक्वल्स टू 100 माइनस एल बाय एल इंटू द लेफ्ट साइड। अब सुनो, लॉजिक समझते चलना। इसको कौन-सा पॉइंट कहते हैं बोलो? बैलेंस पॉइंट, और इसको कहते हैं बैलेंस्ड लिंक्ड। क्या कहते हैं इसको? बैलेंस्ड लिंक्ड। चलिए सारे बच्चे कॉपी कर लेंगे, आंसर लिंक, बैलेंस्ड लिंक। हाँ भैया।
हो गया? बढ़े? चलो, लिखिएगा। कर लिया? अब डिफरेंट केसेस पढ़ेंगे इसी का और उसमें अलग-अलग कनेक्शंस हम लोग समझेंगे, ठीक ना? तो लिखेंगे केस 1, केस 1, केस 1, केस 1 लिखिए, केस 1, केस 1 कहता है व्हेन रेसिस्टर्स व्हेन रेसिस्टर्स व्हेन रेसिस्टर्स are interchanged are interchanged when resistors are interchanged interchanged with each other with each other with each other with each other which each other with each other फुल स्टॉप डाल के लिखिएगा then find the new balancing length 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 क्या लिखा when resistors are interchanged with each other then find the new balancing length सबने कर लिया बोलो यार किसी का बचा है भाई हटा दें फोटो क्लिक हो गया था लिख लिया आप लोग फर्स्ट गया था सबका लिखा हुआ हो गया इसमें थोड़े से मॉडिफिकेशंस करते हैं डायग्राम में राइट साइड है क्लियर हो गया सभी का चलो अब सुनो क्या हुआ लुक हियर इसी डायग्राम को मॉडिफाई कर रहे हैं देखो सब कोई ये आर है आर की जगह हटा के ऐसे करके हम यहाँ लगा दे रहे हैं एस को किसको लगा दे रहे हैं देखना अच्छे से और जहां एस है वहां क्या कर दिया आर नाम बदल दिया मतलब क्या कर दिया सब उल्टा कर दिया अब अननोन वगैरह हटा दो सब ठीक है ये भी हटा दिया लेफ्ट रहने दो राइट रहने दो लेफ्ट और राइट एज इट इज रह जाएगा बस एस और आर का पोजीशन इंटरचेंज कर दिया अब बताना अगर इसको इंटरचेंज कर दें तो बैलेंसिंग लेंथ वही दिखाएगा क्या नहीं वो बदलेगा अब वो बदल जाएगा कुछ ना कुछ बदल जाएगा क्या बदलेगा समझो यहाँ पे अब ये वाला न्यू बैलेंसिंग लेंथ देखो यहाँ पे मैं न्यू बैलेंसिंग लेंथ कुछ बना रहा हूँ अब नया बैलेंसिंग लेंथ आपका ये आ गया लुक हियर अब ये न्यू बैलेंसिंग लेंथ है आपका पहले से कुछ अलग ठीक ना तो अब ये आपका आ गया न्यू बैलेंसिंग लेंथ न्यू बैलेंसिंग पॉइंट या बैलेंसिंग लेंथ बैलेंसिंग पॉइंट अब न्यू बैलेंसिंग पॉइंट आ गया तो एल और 100 माइनस एल हटाओ ये डेटा हमारे पास है ही ठीक है इस न्यू बैलेंसिंग पॉइंट को हम क्या कर लेते हैं देखो सब कोई इस न्यू बैलेंसिंग पॉइंट को हम कुछ मान लेते हैं एल डैश माना क्या तो ये एल डैश तो रिमेनिंग कितना हो गया 100 माइनस एल डैश आपको बताना है न्यू बैलेंसिंग लेंथ क्या होगा समझ में आया ये पुराना वाला था ये न्यू वाला है ओके डायग्राम में थोड़ा सा चेंजेस किया है बाद बाकी वही डायग्राम है पूरा अब अगर मुझे न्यू बैलेंसिंग लेंथ एल डैश दे रखा है एल पहले एल था आप कितना जल्दी बताइए एल डैश पहले वाला फॉर्मूला क्या आया था बोलो सब कोई आर इज इक्वल टू था राइट साइड इज इक्वल टू बोलो बोलो सर 100 माइनस एल बाय एल इंटू लेफ्ट साइड पहले राइट साइड कौन लगा हुआ था एस या आर राइट साइड एस लगा था और एल डैश नहीं सॉरी
और लेफ्ट साइड क्या लगा था, आर। ये पुराना वाला ही फॉर्मूला है कॉपी में जो लिखा है आपके, बोलो हाँ या नहीं। अब न्यू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसके फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग बोलो तो, बोलो 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 ऐसे, आर डैश या एस डैश। वेट फॉर 2 मिनट्स, बोलो यार कौन सा होगा। आर इज इक्वल टू ना, प्लीज, आपका बायो है मैथ। टेंथ, हाँ टेंथ कहाँ से किया, तो आप 3 से 6 आ जाइए। फिर रिसेंटली कुछ 4 दिन पहले मैथ स्टार्ट हुआ है, वो आज, हाँ 3 से फिजिक्स मैथ्स में, हाँ देखो मैथ्स इंक्लूडेड है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा कोई सरचार्ज नहीं है। मैथ्स अगर बायो के साथ कोई बच्चा करना चाहे तो कंटिन्यू कर सकता है स्ट्रक्चर, रखेगा तब भी उसको सेम ही लगेगा, बट उसका बायो है, सब कुछ आपको सामने बता दिया जाए। हाँ, अब मेरा सीबीएसई है क्या नहीं, मेरा फिक्स्ड है सीबीएसई, और बिहार बोर्ड में केवल इंग्लिश मीडियम। हाँ केवल, टेंथ कहाँ से किया आपने, तो मेरा इंग्लिश मीडियम ही, हिंदी नहीं। 3 से 6 आज से, हाँ आज से। चलो बताओ यार, बोलो बोलो बोलो, राइट साइड क्या है बोलो, राइट साइड क्या है, बोलो बोलो, आर है या एस है, आर है, इज इक्वल्स टू 100 माइनस एल डैश बाई एल डैश इंटू एस। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, आया नहीं आया, इस कारण से आपको ये फॉर्मूला लिखवाया गया था, समझ में आया। तुम याद कर लेते परमानेंटली, एस इक्वल्स टू 100 माइनस एल बाई एल इज इक्वल्स टू आर, बोलते ये कैसे लिख दिया, आया समझ में, सीधे उल्टा हो गया ना। इसलिए सबसे अच्छा क्या रखो, जो दाएं साइड लगा है उसको पकड़ो, फिर लेफ्ट साइड आओ, आया समझे, कभी गलती होने वाला नहीं। इज इट ओके, चलो अब देखो इसको कैसे इक्वेट करते हैं। अब एरो और एलडेस में रिलेशन निकालना है, काफी आसान है, नॉट ए टिपिकल वन। एक काम करो, इसको मारो पलटी, मारो पलटी, एस बराबर क्या लिखो, 100 माइनस, सॉरी सॉरी, पलटी मारो, बोलो क्या लिखो, एस इंटू 100 माइनस एल डैश बाई एल डैश इज इक्वल टू क्या चीज, आर। इक्वेशन नंबर 2 ही तो है, उल्टा करके लिख लिया। अब 1 को डिवाइड करो 2 से, 1 को किससे डिवाइड करो, 2 से, 1 डिवाइडेड बाय 2 डायरेक्ट लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 2, बुद्धिजीवी बच्चों, एस से एस कैंसिल, आर से आर, बोल नहीं रहे हैं, आर से आर कैंसिल, एस से एस कैंसिल, क्या बचेगा बोलो, 100 माइनस एल डैश बाय एल डैश इक्वल्स टू 100 माइनस एल बाई एल। अब क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इस, अरे बोलो हाँ या नहीं, करोगे तो क्या आ जाएगा बोलो, 100 माइनस एल डैश इंटू एल, बोलो आया नहीं आया, उधर भेजो, 100 इंटू एल डैश माइनस एल इंटू एल डैश, कुछ कुछ जाता दिखाई दे रहा है, गड़बड़ी हो गया क्या यार, क्या गड़बड़ी हो गया, क्या एल डैश होगा, गड़बड़ी हो गया क्या है, ठीक है, गड़बड़ी लग रहा है क्या, क्या गड़बड़ी लग रहा है, अच्छा रुको रुको, ऐसे, अच्छा एक काम करते देखो, आर का वैल्यू यहाँ उठा के रख दो,
सबसे अच्छा कैंसिल आउट होगी क्यों? एक काम करते सुनो, आर का वैल्यू यहाँ रखो, पुट 2 इन 1, 2 को 1 रखेंगे, चलो सेकेंड वाले इक्वेशन को फर्स्ट वाले में रखो, चलो रखते हैं, क्या आ जाएगा बोलो? S इक्वल्स टू 100 माइनस एल बाय एल इंटू, बोलो बोलो बोलो, 100 माइनस एल डैश बाय एल डैश इंटू एस, एस एस क्या हो गया? एल इंटू एल डैश इधर आ जाएगा क्या? एल इंटू एल डैश इधर आ जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ, 100 इंटू 100 10,000 हो जाएगा क्या? माइनस क्या हो जाएगा बोलो? 100 एल डैश माइनस 100 एल, नहीं हो जाएगा क्या? अब प्लस क्या हो जाएगा बोलो यहाँ से? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस एल इंटू एल डैश, नहीं हो जाएगा क्या? एल इंटू एल डैश तो इधर आ गया, है नहीं आया? एल इंटू एल डैश दोनों साइड से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा क्या? अब एक काम करो, इस एल वाले टर्म को हाँ चलो देखो, सिंपल, 100 एल डैश को इधर ले आओ, ले आए, दोनों में से 100 कॉमन ले लेंगे क्या? तो क्या बचेगा बोलो? 100 माइनस एल बच जाएगा क्या? अरे बोलो हाँ या नहीं? 100 से 100 क्या हो गया? एल डैश बराबर कितना आया? 100 माइनस एल डैश, बहुत जल्दी बताइए, 100 माइनस, अब ये तुमको क्या क्यों करवाया बता रहा हूँ, ये वाले में बहुत बच्चे कुछ ना कुछ दिमाग लगा लेते हैं। अब देखो रिजल्ट भी काफी आसान है, देखो एक बात समझो, रिजल्ट क्या है बोलो यहाँ से? 100 माइनस एल, इन केस अगर आपको ऑप्शनल पेपर आ गया तो मान के चलो पहले वाला बैलेंसिंग लिंक था 40 सेंटीमीटर का, कितना था? 40, एल जो था वो कितने का था? 40, न्यू बैलेंसिंग लिंक कितने का होगा सोच के बताओ तो? 100 माइनस 40 कितना हो जाएगा? डायरेक्ट रिजल्ट आ रहा है, आया समझ में? बट याद रखने का सीक्वेंस ऐसे ही याद रखना, राइट साइड इज इक्वल टू 100 माइनस एल इंटू कौन सा? लेफ्ट साइड, कभी गलती नहीं। सेट ओके, चलिए कर लीजिए कॉपी, ये वाला पूरा परफॉर्म। हाँ, अगर आपको फिर से बनाना है बना लो अपने सोफिस्टिकेशन के लिए, मैंने मना नहीं किया है, बट अगर समझ गए तो समझ गए, इट्स ओके। रिक्वायर्ड नहीं है, समझ जाओगे यार, समझ जाओगे ये चीज, एक काम करो, रफ में क्या करो बता देता हूँ, सुनो, ये बना लो स्ट्रिप्स तीनों, इधर एस कर दो, इधर क्या कर दो? आर, और नीचे बस एक वायर बना के एल डैश लिख के 100 माइनस एल डैश, दैट्स इट। सुनो सुनो प्लीज, अगर आपको दीवार डायग्राम रेकर करना है, 3 स्ट्रिप्स, एक वायर, एल डैश 100 माइनस एल डैश एस और आर, दैट्स इट, खत्म। समझ में आ जाएगा उतने में क्या हुआ है? 3 स्ट्रिप्स बनाइए, वायर बनाइए, एस और आर कर दीजिए, समझ में आ जाएगा खुद। ड्रॉ 3 स्ट्रिप वायर, एल की जगह एल डैश डालो, 100 माइनस एल डैश डालो, एस लिखो, आर लिखो, क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा क्या हुआ है वायर।
कितनी बार ऊपर जाएँगे आप? ये आप लोग बीच में चिल करने चले जाते हो ऊपर में, छत पे थोड़ा रिलैक्स करते हैं बैठ के। नॉट अलाउड, इफ नेसेसरी तभी जाइए ऊपर। आने की क्लास से पहले जाते हो, फिर बीच में जाना है, फिर लास्ट में जाना है, थोड़ी होता है। क्या?